নমস্কার, গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম টু নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। আমি জব্বার আলী আমার সহপ্রতিনিধি রাজ এবং মাসুমের সঙ্গে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি ইসলামপুর বাজারে। কবি নজরুলের কথায় এই পৃথিবীতে যা কিছু চিরকল্যাণকর এবং অবশ্যই সমাজের কল্যাণকর হয়েছে তার অর্ধেক যেমন নারীরা সৃজন করেছে, অর্ধেকরা কিন্তু পুরুষ সৃজন করেছে। কিন্তু এই নারী পুরুষের সহাবস্থানে বর্তমানে অন্ততপক্ষে সেলফ ডিপেন্ডেন্সির যে ক্রাইসিস পিরিয়ড চলছে, সেই মুহূর্তে অন্ততপক্ষে মাইনরিটির মেয়েরা নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করবার জন্য যেভাবে এগিয়ে আসছেন, তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এই প্রমোশনটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা উপস্থাপিত করব। আপনাদের জানিয়ে দিই, সাধারণত মফস্বল বা শহরের মেয়েরা যারা মাইনরিটি ঘরে জন্ম করে তারা সাধারণত হেসেলে বা পর্দার আড়ালেই থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু বর্তমানে অন্ততপক্ষে তথ্য প্রযুক্তির যেভাবে অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে এবং যুগ যেভাবে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে নারীদেরও এগিয়ে আসা উচিত, কথা কিন্তু কবির কথাতে বারবার ব্যক্ত হয়েছে। এই মুহূর্তে আমি আমার সহপ্রতিনিধি রাজের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছি ইসলামপুর বাজারের চুরিপট্টি এলাকায়, যেখানে অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে ক্যামেরায় গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে যার বিচরণ আবাদ, ইসলামপুরের মাস্টার ট্রেনার বিউটিশিয়ান চৈতালি পাল দেবনাথ এবং এই ওয়ার্ডের আরেকজন বলা চলে সংগ্রামী মানুষ, যিনি নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বহু লড়াই সংগ্রাম করেছেন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা শিক্ষক মাস্টার ফিরোজ আহমেদ, তারা কিন্তু রয়েছেন। এবং ফিতে কেটে এই মুহূর্তে যে মেকআপ গ্ল্যাম রানীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে, সেটি কিন্তু শুভ উদ্বোধন হবে। ফিতে কেটে এই মুহূর্তে সেই শুভ উদ্বোধনের শুভ কার্যক্রম আপনাদের দেখাচ্ছি। এবং মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাও যে নিজেদেরকে এভাবে স্বাবলম্বী করতে পারে, তার জন্য এটা নিঃসন্দেহে একটা জলজন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই মুহূর্তে এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি গেস্টদের রিসেপশনের পরেই ফিতে কেটে কিন্তু এই মুহূর্তে শুভ উদ্বোধনের সেই শুভ লগ্ন চলছে। আমরা কথা বলবো মাস্টার ট্রেনার ইন বিউটিশিয়ান কোর্স চৈতালি পাল দেবনাথ এবং কাউন্সিলর ফিরোজ আহমেদের সঙ্গে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন কচিকাচারাও আজকের এই শুভ লগ্নে কিন্তু এসে উপস্থিত এবং দুজন সম্মানীয় অতিথির উপস্থিতিতে ইসলামপুর বাজারে তাদের নিজস্ব বাসভবনের পরিকাঠামোর মধ্যেই কিন্তু আজকে এই যে মেকআপ লাউঞ্জ বা বলা চলে মেকআপের যে প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠান কিন্তু উদ্বোধন হলো। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। প্রথমত আপনাদের জানিয়ে দেব, এটি খবর না হলে খবরের আঙ্গিকে এমন একটি খবর বা বিজ্ঞাপন যার মাধ্যমে হাজারো স্বাবলম্বী নারী নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য আরও অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত করবার কিন্তু সুযোগ পাবেন। আপনাদের জানিয়ে দিই, তিনি হচ্ছেন কোর্স বা তালিম হাসিল করেছেন। আমরা অবশ্যই আজকের উদ্বোধক যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবো, কিন্তু আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব ফিউচার দ্য রোড অফ সাকসেস এবং চৌতালিশ যে বিউটিশিয়ান কোর্সের যে কোর্স রয়েছে। আমরা প্রথমেই কথা বলবো এই মুহূর্তে এই ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধि फिरोज भाई রয়েছে, তার সঙ্গে सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, क्योंकि आपके वार्ड में ही रानी खातून एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लड़की अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाए है। आगाज़ किया आज मेकअप लाउंज का, और आप उद्बोधक में थे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, कमन लाग फिरोज भाई? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों के न्यूज़ चैनल का, जो रही नीचे बहुत सारा दुकान वो भाड़ा दे सकी है। और आज और भी खुशी की बात है कि वो एक ICDS का वो सर्विस करती है, ICDS में वो जॉब करती है। इसके बावजूद भी वो ब्यूटिशियन का फुल कोर्स करने के बाद आज वो करते हैं कि वो और तरक्की करे। एक सवाल और भी पूछेंगे, खास करके माइनॉरिटी इलाके में देखा जाता है कि लड़कियाँ चारों दीवार के अंदर या फिर कह सकते हैं कि रसोई घर के अंदर ही छिपे रहती हैं। ये एक आगाज़ इतने स्ट्रगल करने के बाद भी, खुद एक सर्विस होल्डर होने के बावजूद भी, और भी 2-4 लड़की को कामगार करने के लिए ब्यूटिशियन कोर्स या ब्यूटिशियन पार्लर खोला है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? माइनॉरिटी की लड़कियां जो चारदीवारी के अंदर रहती है या माने किसी काम में आगे नहीं बढ़ती है, तो इसको कहीं किसी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कहीं किसी किताब में इस तरह की बातें नहीं लिखी हुई है कि माइनॉरिटी की लड़कियां तालीम हासिल नहीं करें या माइनॉरिटी की लड़कियां अपडेट ना हो, अपग्रेड ना हो या वक्त के साथ ना चले। उन लोगों को हक है मजीद ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करे, ऊंची तालीम हासिल करे, ऊंचा वो मुकाम हासिल करे, और साइंस का जो भी अपग्रेडेशन है, वक्त हालात का जो भी अपग्रेडेशन है, लिमिट में रहकर
लिमिट में रहकर, पर्दापोशी में रहकर वो अपने काम को अंजाम दे सकती है। समाज, माइनॉरिटी समाज उसको एक जगह रोकता है, जो है उड़ियानियत से, बेपर्दगी से, लेकिन पर्दा में रह के वो आला से आला तालीम हासिल कर सकती है। आज पूरे भारतवर्ष में आप देख रहे होंगे हिजाब के खिलाफ एक तरह का लड़ाई चल रहा था, लेकिन वो हिजाब वाली लड़कियां लोग भी दिखा दी कि आईआईटी में टॉप कर सकती है और मुख्तलिफ एग्ज़ाम में वो लोग बहुत अच्छा नंबर से पास कर सकती है। पूरे इंडिया में इसका मिसाल कायम की है। लिहाजा मेरा जो ये माइनॉरिटी इलाका, विशेष करके 10 नंबर वार्ड में जब हम कोचिंग किए थे, कोचिंग से पहले यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा तालीम नहीं हासिल कर रही थी, लेकिन मेरे कोचिंग करने के बाद से जो देखा गया कि यहाँ की बच्चियाँ तालीम के तरफ एक फ्लो हुआ और आज तालीम के मामला में बहुत आगे है। आज चूड़ी पट्टी की लड़की मेडिकल निकाल पाई है, एमबीबीएस कर पाई है, आज आईआईटी निकाल रही है और मुख्तलिफ ब्रांचेस, मुख्तलिफ जगह में वो लोग जा रही है। और यही मेरा लोगों से ये अपील है कि आइंदा भी ये लोग तालीम हासिल करें और मुख्तलिफ मुकामात को पहुँचे। আমরা কথা বলবো যার করকমলে আজকে এই বিউটিশিয়ান যে সেন্টার বা বলা চলে যে মেকআপ লাউঞ্জ বা মেকআপ সেন্টারের শুভ উদ্বোধন হলো। ইসলামপুর নয়, গোটা পশ্চিমবাংলার একদম বলা চলে মাস্টার ট্রেনার হিসাবে যিনি পরিচিত চৈতালি পাল দেবনাথ। সবচেয়ে বড় কথা, চৈতালি পাল দেবনাথ এবং তাপস পাল দেবনাথের সাহচর্যে ফিউচার দ্য রোড অফ সাকসেস থেকে অনেকেই আজকে প্রতিষ্ঠিত, নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রথমত অনেক অনেক অভিবাদন যে গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও হচ্ছে আজকে উদ্বোধক হিসাবে এখানে এলেন চৈতালি ম্যাডাম, এবং তার পাশাপাশি কনগ্রাচুলেশনস দ্বিতীয়বারের জন্য এটার জন্য দ্য ফিউচার অফ রোড অফ সাকসেস থেকে, এবং সেই সঙ্গে চৈতালির যে মেকআপ লাউঞ্জ আছে সেখান থেকে অনেকে আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। কি বলবেন, কেমন লাগছে? মানে এটা আমাদেরও, মানে ওদের এই ওপেনিংয়ে আমাদের একটু গর্বের একটা পার্ট থেকে যায়। এখানে যখন তাপসের কথাটা আসলো, আমি প্রথমেই শুরু করছি যে এখানটায় ওপেনিংটা করেছে মেকআপ স্টুডিও, বিউটিশিয়ান কোর্স, কিন্তু রানী আমাদের সাথে জুড়ে আছে, আমি আর তাপসের সাথে জুড়ে আছে 2007-08 থেকে। মানে ও বিভিন্ন রকম কিছু নিয়েই ভেবেছে, ছোটোর থেকে ওর একটা স্বপ্ন যে ও কিছু না কিছু করবে। ছোটো থেকে বিভিন্ন কিছু হাতের কাজ, মানে কন্টিনিউ ও একটা সার্ভিসের সাথে সাথে কিছু না কিছু করে আমাদের সাথে বহু বছর থেকে জড়িয়ে আছে। আর এমন স্টুডেন্ট পেয়ে আমরা নিজেরাও নিজেদেরকে প্রাউড ফিল করি যে যেমনভাবে ওদেরকে শিখিয়েছি ঠিক তেমনভাবে। মানে এখনও যে কোনো জায়গায় গেলে, যে কোনো জায়গায় দেখা হলে দিদি বলে যে রেসপেক্টটা পাই আমি প্রতিটা স্টুডেন্টদের কাছ থেকে, এটা একটা গুরুদের, প্রত্যেকটা গুরুর একটা মানে ইয়ে থাকে যে স্টুডেন্টদের কাছে যে জিনিসটা যেটা আমরা আমাদের সময় করে এসেছি, এখনকার জেনারেশনের বাচ্চারা সেগুলো একটু ভুলে যায়। হ্যাঁ, তার মধ্যে কিছু কিছু স্টুডেন্ট থাকে যারা মন থেকে ভালোবাসে। রানী হলো আমার সেরকম একটা স্টুডেন্ট। ও যে এই ছোটো করে এই জায়গায় করেছে, অনেক দিন থেকে প্রতিটা স্টুডেন্টকে আমরা বলি যে ছোট করে করো, তবু নিজের পায়ে দাঁড়াও। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, করেছে। আমি এতটাই খুশি যেটা বলে বোঝাতে পারবো না। খুব ভালো লাগছে আপনারা এসেছেন, মানে নিউজ চ্যানেলে এটা ও যে করেছে সেটা সবাই জানুক, আমার যত স্টুডেন্ট আছে তারাও জানুক। রানী এই জায়গায় থেকেও একটা ছোট হোক বড় হোক পরের কথা, নিজের চেষ্টা দিয়ে যেটা করেছে সেটা সবাই সবার মতো করে নিজেরা করুক, এটাই চাইবো। রানী অনেক দূর এগিয়ে যাক, সব সময় ওর পাশে আছি, থাকবো। ধন্যবাদ। যে বিষয়টা বারবার আমরা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, মানুষের চোখে অশ্রু বা আশু থাকে দু প্রকারের, একটা বিজয় হাসিল করার আশু এবং একটা হচ্ছে অবশ্যই গম বা দুঃখের হাসু। কিন্তু এই মুহূর্তে রানী খাতুন, যার তত্ত্বাবধানে আগামী দিনগুলোতে এই বিউটি পার্লার চলবে এবং হাজারো রমণী বলা চলে এখান থেকে নিজেদের পূর্ণতা পাবে বিভিন্ন প্রকারের মেকআপের মাধ্যমে। কী কী ফ্যাসিলিটিস রয়েছে সেটা জানার আগে আমরা অভিব্যক্তি নেওয়ার চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে রানী खातून हमारे संगे रहे हैं। रानी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू आप लोग आए उसके लिए पहले सबसे पहले शुक्रिया। एक बहुत बड़ा कदम है, खास करके देखा जाता है कि हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं, चाहते हैं कि चार दीवारी में रहे या ससुराल में रहें, रसोई में ही खाना बनाएं और ससुराल में हो या फिर जहाँ कहीं भी वो रहती है वहाँ पड़ोसे। आप एक ठोस कदम उठाया, एक ब्यूटी पार्लर का आगाज़ कर दिया आज, क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो लड़कियां महदूद नहीं है किचन तक, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट मिलता है फैमिली की तरफ से तो बस यही बहुत है, और ऐसे अगर गुरु मिल जाए तो और कुछ कहने की बात ही नहीं है। और मेरी जैसी लड़की अगर कर सकती है तो इंशाल्लाह मैं इतना समझती हूँ कि सभी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मेरे बारे में पता है कि मेरी अम्मी नहीं है, पापा नहीं है, लेकिन जब अम्मी पापा थे तब भी बहुत सपोर्ट करते थे। खास करके अम्मी के गुजरने के बाद पापा बहुत सपोर्ट किए हैं कि हम जिस फील्ड में जाना चाहे, बस नेक राह पे चलना है तो चल सकती हो। तो पापा का था वो दुआ, इसलिए आज कर पाए हैं। और जो भी बड़े हैं मेरे साथ जुड़ते, जितना हमको जानते हैं, सभी सपोर्ट करते हैं। हकीकत बात है कि दीदी भी कभी नहीं कही है कि हाँ तुम करोगी तो बड़ा ही करना, या किसी भी स्टूडेंट को दीदी हमेशा कही है कि छोटा से शुरुआत करो लेकिन करो। तो बस उस वजह से सोच कर, और भी बहुत है, मेरी बहन है और मेरे और भी है जो मेरे साथ है, वो सब मेहनत किए हैं, सब मेरे लिए इसको तैयार करने के लिए खड़े हुए मेरे लिए। बस यही बहुत था, बस उन सब की मेहनत है ताकि जो हम ये कर पाए हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छा किया जाए और बेहतर किया जाए। और रहा सवाल, जितना हम दीदी से सीखे हैं कोशिश करेंगे, दीदी जैसा तो नहीं लेकिन दीदी के जैसा करेंगे, कोशिश कर सके। और जितना बस कोशिश करना है, कोशिश करना, बढ़ते जाना आगे, बस यही कहना और कुछ भी नहीं। युग जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, खास करके सजने सजावने का या सवारने का जो बात है, उसमें कंपटीशन आया है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। बहुत सारे गुरु को ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट सीख के वहीं बैठे रहे, लेकिन ऐसा गुरु चैताली पाल देवनाथ है कि स्टूडेंट्स जो भी जहाँ छोटा मोटा कदम जो भी उठाते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल। और सपोर्ट करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, सिर्फ चौताली दी नहीं, तापस दा भी इतने अच्छे गुरु रह चुके हैं। सबसे पहले मेरे जो उस्ताद रहे हैं, दीदी सही कही कि हम बहुत सारा फील्ड में हाथ आजमा चुके हैं, छोटा बड़ा बहुत कुछ सीखे हैं अभी तक में। तो सबसे पहले गुरु तो मेरे तापस दा है, और उनसे मतलब एक दादा तो है ही, और पर उनके जैसा गुरु भी। और हकीकत में दीदी के जैसा और तापस दा के जैसा गुरु अभी तक तो हमको मिला नहीं, जो मतलब सपोर्ट करे, बढ़ चढ़ के, और जो भी उनके पास जाके शेयर कर सकते थे, बोल सकते थे। कभी दीदी के पास रोए भी है दीदी से, फिर हंसे भी है, दीदी अचार खिलाइए दीदी वो याद रहेगा, दीदी बना के खिलाइए। तो একটু কথা বলবো কি তার প্রতিক্রিয়া এবং কি তার অভিলাষা আমরা অবশ্যই জানার চেষ্টা করব, जुड़े থাকুন। सबसे पहले तो मुबारकबाद। शुक्रिया। आगे वाला हाल जिस तरह से चलता है, पीछे वाला भी उसी तरह से चलेगा। दीदी एक होनहार लेडी बन गई है, एक ब्यूटी पार्लर भी हुआ जिसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, बढ़ चढ़ के अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए। कितना खुशी महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहिए? दीदी आगे बढ़े, मेरे लिए बहुत दुआ कर रही हूँ मैं दिल से। मेरे दीदी मेहमान हैं आज यहाँ, कौन लगे? रानी फ्रेंड है, हम लोग एक ही साथ थे, एक ही बैच में थे। अच्छा। मेकअप में। तो रानी दी के लिए तो बहुत ही खुश है, क्योंकि बहुत अच्छी भी है वो, शुरू से ही क्लास में भी बहुत अच्छी थी, बात में, हर चीज़ में। और क्या बोले, हम तो इतना ही चाहेंगे कि वो बहुत आगे जाए, मतलब, और हमेशा हम लोग के साथ ही रहे, पास ही रहे। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে মানুষের অবশ্যই চালচলন থেকে শুরু করে পোশাক আশাক এবং তার পাশাপাশি सजने संवारने का जो तरीका होता है उसका अंदाज़ बदल गया है। लिहाजा अगर आप अपने आप को सजने संवारने के लिए HD मेकअप हो, अल्ट्रा HD मेकअप हो, नॉन HD मेकअप हो, वाटर प्रूफ मेकअप या ब्राज़ीलियन मेकअप करवाना चाहते हैं, या फिर ब्राइडल मेकअप हो, या फिर कह सकते हैं हेयर ड्रेसिंग से लेकर नेल ड्रेसिंग से लेकर के जितने भी सजने संवारने का टेक्निक्स रानी हासिल किए, हम उम्मीद करते हैं कि उसका जो मेकअप लाउंज है इसमें आके आप उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। और अपने घर के करीबी इस्लामपुर बाज़ार, जहां कम से कम इस चीज़ का ये खामी था कि खास करके हमारे घर के महिलाएं जो सजने संवारने के लिए दूसरी जगह जाते थे, वो यहां आके इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन चलते चलते आप सभी को बता दें कि ये खबर ना होने के बावजूद भी एक खबर है, क्योंकि जिनके माँ बाप दुनिया से कह सकते हैं जा चुके हैं, गुजर चुके हैं, उनके बाद भी एक महिला होकर भी इतना बड़ा सख्त कदम उठाना, अपने बहन का शादी करवाना, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनवाना, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि एक खुद सर्विस होल्डर होने के बावजूद भी 2-4 लड़कियों को कामगार बनाने के लिए खुद ही एक आगाज़, एक बड़ा कदम उठा लिए। इसी तरह का एंटरप्रेन्योरशिप आगे दिन में हमारे समाज को और महिला समाज को आगे ले जाएगी। यह उम्मीद के साथ हम भी दुआ करते हैं कि रानी का ये बड़ा जो कदम है, ये कदम और भी आगे बड़े हो जाए। नाम मेकअप पॉइंट ग्लैम बाय रानी। हाँ, इसका कैप्शन में आपको एड्रेस और साथ ही साथ इसका जो नाम है मेकअप पॉइंट ग्लैम बाय रानी, इस्लामपुर बाजार, चूड़ीपट्टी,
इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर। यहाँ आके आपको बोर्ड देखने से पता चल जाएगा और कैप्शन में जो मोबाइल नंबर है वो भी दिया हुआ है, उससे रब्ता करके बात करके आप इसके बारे में डिटेल्स जानकारी या फिर सीधा रानी से बात करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब तक विदा लेते हैं सहप्रति राज और मासूम के साथ, मैं जब्बार अली, लेकिन यही उम्मीद के साथ कि मिलते हैं बहुत सारे खास खबरें लेकर के